स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की है आज हम उसके एपिसोड नंबर 4 पर हैं। द नेम ऑफ द सीरीज इज टॉप 10 एनएलयूज ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप गाइडलाइंस और एपिसोड नंबर 4 है स्कॉलरशिप गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय एनएलयू जोधपुर। सो स्टूडेंट्स, so many of you target this national university as your dream NLU. But yes, when it comes to fees, a lot of students face difficulty and cannot afford the high fees of national universities. And if you are targeting NLUJ, then you should definitely watch this video. In the episode number 1, 2, and 3, where I have covered Bangalore, Narsar, and Kolkata NLU's scholarship, so many students have written in the comment box, ma'am, National Law University of Delhi की scholarships भी बताइएगा, because so many of us are preparing for A-Lit. So students, yes, for sure, I'll cover that video as well. So hi everybody, this is Priyanka Dodani, senior mentor from Legal Edge by Top Rankers, bring towards you episode number 4, National Law University of Jodhpur scholarship guidelines. So let's proceed. Bifor proceeding, let's see बच्चों की NLU जोधपुर की फीस क्या है. This is the fees structure 2024 of semester 1, where the total fees is 1,53,000. And बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये पता करना होता है कि ये फीस कितनी है. So fees is 1,50,000 plus. And if you cannot afford this fees, then this video is for you. So बच्चों, सबसे पहले तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर ने लास्ट टाइम जब स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस लॉन्च की थी और फॉर्म लॉन्च किया था, द ईयर वाज 2019, और 2019 के बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया. तो आपके मन में आ रहा होगा, मैम विल वी नॉट बी एबल टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. हो सकता है कि वो करंट एकेडमिक ईयर में लेके आए, बट करेंटली मेरिट कम मीन्स जो भी उनकी स्कॉलरशिप थी वो वाली स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है. एंड पर नॉट टू वरी, देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स एज वेल. एक वेबसाइट है NLUJAA. So the name of this website is www.NLUJ small, everything letters are small, NLUJAA.com. Okay, so this website is basically the alumni base of NLU Jodhpur. NLU Jodhpur का alumni base इतना fantastic है. They have thought a lot about students in their giving back program. तो उनका giving back program के लिए पूरी website बनी हुई है. So you have to just type this website and you can read National Law University of Jodhpur Alumni Association. अब बच्चों, ये जो Alumni Association है, these are all the pass out from NLU Jodhpur and have started this website for the benefit of students. So उनकी giving back policy में 3 तरह के areas covered है. पहला fundraisers, दूसरा financial assistance और तीसरा education loan. अब इसके पीछे उनका objective क्या है? Let us see that. So बच्चों, सबसे पहले जो उनका ऑब्जेक्टिव है, that is the NLU Jodhpur Alumni Association is a collective effort of NLU Jodhpur alumni to work for and give back to our university, its students and alumni, be it to raise financial aid for students or to contribute towards the infrastructure requirements of the university, or support the administrative activities of the alumni office, or any other way in which we can help the members of the student and alumni community. So बच्चों, ये बेसिकली ये जो फंड है, ये फंड जो है NLU जोधपुर ने स्टार्ट किया, NLU जोधपुर के एल्यूमिनाई बेस ने स्टार्ट किया है. और इसमें ये 3 तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं. फंड रेजर्स, यानी जो बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उनके लिए फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ चालू करते हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक फॉर्म होता है, वो आप भर सकते हो. इसके अलावा एजुकेशन लोन की डिटेल्स हैं. सो बच्चों, NLU जोधपुर खुद की तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट NLU जोधपुर का एल्यूमिनाई बेस ने इतना कुछ किया है. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहली चीज, एजुकेशन लोन. सो जो बच्चे ये ट्यूशन फीस जो है ना, जो बच्चे ये ट्यूशन फीस नहीं पे कर पा रहे हैं बाय एनी मीन्स, ये वाली जो ट्यूशन फी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये लोन की फैसिलिटी दी गई है. वो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच लोकेटेड विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और इस लोन का स्कीम का नाम है SBI स्कॉलर लोन स्कीम. अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है 20 लाख तक का लोन अवेल कर सकता है. इसके साथ साथ कोई भी कोलेट्रल जमा करने की जरूरत नहीं है. यूजुअली हम जब लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें अपनी ज़मीन या फिर
कोई भी प्लॉट या घर या कोई भी एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं, तभी लोन मिलता है। बट एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम के अंतर्गत आपको 20 लाख का लोन मिल सकता है और आपको कोई भी कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपको और आप नीडी हो एंड नो स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल इन योर एरिया और आप ट्राई कर रहे हो बट नहीं मिल पा रही, गो फॉर दिस। ओके, एंड ट्रस्ट मी, आप जब एनएलयू से पास कर जाओगे यू विल बी एबल टू रीपे दिस लोन एंड यू कैन बिकम अ लॉयर, और if you want to go into judiciary you can do that also. You have n number of lengths to go and pursue your dream. Okay, so if you have to take the loan, no issue, you can avail this facility of SBI scholar loan scheme. Okay बच्चों, अब यहाँ पे उसकी लिंक भी गिवन है, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्टली मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर गिविंग बैक में फाइनेंशियल असिस्टेंस सेकेंड क्राइटेरिया है। सो बच्चों, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, अब ये जब फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म फॉर सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस फॉर्म में बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल योर नेम हियर, देन पर्सनल ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्टली जो आप देखोगे इसी फॉर्म का एक्सटेंशन, फादर एंड हस्बैंड नेम्स, परमानेंट एड्रेस, आपके केस में आप फादर का नेम लिखोगे, और यदि कोई मैरिड वुमेन है हु इज अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम and want the scholarship or the financial assistance can write the husband's name, permanent address of the candidate, correspondence address, status, आपका स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है, डिटेल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सॉट एंड फॉर होम अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिटेल लिखनी है कि आपको क्यों फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए और आप किस कैटेगरी से हो, आपके फैमिली इनकम क्या है, वो सब आपको डिटेल्स लिखनी है। हैव यू सॉट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम NLUJAA इन द पास्ट, आप पहले कभी यहाँ से स्कॉलरशिप ले चुके हो क्या? फिर उसके बाद हैव यू सॉट एनी इंडिविजुअल एल्यूमिनाई इन द पास्ट, या क्या आपने एल्यूमिनाई से कभी कोई फंड्स लिए हैं क्या? उसके बाद कोई अदर बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, जैसे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट से आपको मिल रही है क्या? तो वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, फिर उसके बाद अंडरटेकिंग का ये फॉर्म है जिसमें आपको टिक टिक करते जाना है। फिर मैसेज, ये मैसेज डिटरमाइन करता है how much you are needy of this scholarship and why they should provide you this financial assistance. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मैसेज लिखना है, अटैचमेंट लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, and you have to fill this form. And this is the second option under giving back. First was loan you can take, second was this thing. Okay, financial assistance form. Now the third is fundraisers. Okay, so there are a lot of students जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, तो गिविंग बैक के अंदर वो फंड रेजर्स का ऑप्शन चूज करते हैं। और फंड रेजिंग कौन करके देता है? एल्यूमिनाई बेस करके देते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 5th सेम यूजी स्टूडेंट, तो यहाँ पर एल्यूमिनाई बेस ने प्रॉपरली मेंशन किया है उनकी वेबसाइट पे कि अ 5th सेमेस्टर यूजी स्टूडेंट of university is seeking financial assistance of 3.58 lakh to be used to repay loans taken by the student's family. The bank loans were taken from known persons, banks, and also a gold loan by the pledging family jewelry. The loan amounts were used for students' 1st to 5th semester education expenses. The student family is unable to repay the loans. उन्होंने लोन लिया था जो वो पे नहीं कर पा रहे, तो एल्यूमिनाई बेस ने ये फंड रेजिंग चालू करी, और ये फंड रेजिंग में टोटल दे हैव रेज्ड टिल नाउ 1,45,151 rupees. So this is also a huge support to you guys who want to come in this criteria. If you are really needy, explain in the description box under financial assistance. They will raise funds for you and you don't have to worry. So this is the level of alumni base of NLU Jodhpur, and you are going to become the part of that community. Okay, students. Now, nextly we can see external scholarships. So this is something which I have already told you a lot of times about Aditya Birla Scholarship. It provides a scholarship to 5 national universities of India, and NLU Jodhpur is one among them. So Aditya Birla Group is one of the prestigious groups of India. और ये जो scholarship provide करते हैं, इसके बाद जब आप AB scholar बन जाते हो,
तो फिर आपके रिज्यूम में 4 चांद लग जाते हैं, एज आई ऑलवेज से। एनएलयू जोधपुर से अभी तक टिल डेट 22 स्टूडेंट्स को एनएलयू जोधपुर में आदित्य बिरला स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो बी वन अमॉन्ग देम। सो सबसे पहली बात, ये जो स्कॉलरशिप है 1999 में चालू हुई थी। ओके, उसके अलावा ये एक एस्पिरेशनल स्कॉलरशिप है, यानी जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, मेरिटोरियस हैं, उनके लिए है। 22 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में दी जाती है, एज आई ऑलवेज से। अब यहाँ पे कौन कौन से एनएलयूज कवर्ड है? एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, WBNUJS कोलकाता, JNLU गांधीनगर एंड NLU जोधपुर, विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ओके बच्चों, नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू से दैट हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। उसके पहले जानते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। फॉर लॉ स्टूडेंट्स इट इज 1,80,000 ओके per annum, or fees at actuals, whichever is lower, as I already told you in NLSIU Bangalore and NALSAR and WBNUJS Kolkata videos. Okay, now nextly कैसे आपको अप्लाई करना है? तो आपको ऑलरेडी पता है, जो ये 5 लॉ स्कूल्स हैं इसमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ओके, अब ये जो 100 बच्चे हैं ये कैसे आए? हर एनएलयू से 20 बच्चे, तो एनएलयू जोधपुर से भी 20 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लैट स्कोर। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, अभी भी वक्त है, और आपके क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे जो बच्चे एलिजिबल होते हैं वो लोग एप्लीकेशन लिखते हैं टू द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी एनएलयू जोधपुर के डीन को, और वहां से जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट होना चालू होती है। ओके, नाउ नेक्स्टली जो एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है, एनएलयू जोधपुर के जो डीन है वो एप्लीकेशंस को, सारी एप्लीकेशंस को आदित्य बिरला ग्रुप को सेंड करते हैं। नाउ दिस स्टार्ट्स द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में उन बच्चों को लिखना होता है एसे, ठीक है। सो essays will be written by these students, will be reviewed by a panel to shortlist the candidates for the final round. अब ये जो पैनल है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो डीन है वो भी प्रेजेंट होते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इनके एसेज जो है ये रिव्यू होते हैं। किन के एसेज हैं ये? उन 20 बच्चों के जो सिलेक्ट हुए, ओके, फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब जिनके एसेज सही होते हैं, जिनके एसेज पैनल को सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स विल बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ओके, और फिर वो इंटरव्यू मुंबई में होता है। अगेन जो बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं, दे बिकम द AB स्कॉलर्स, सो यू कैन ऑल्सो बी वन अमॉन्ग देम। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्टली उसके बाद यही मुंबई वाली बात यहाँ पे लिखी है। हम देखते हैं कि एनएलयू जोधपुर से कितने बच्चे 2023 में सिलेक्ट हुए थे। तो सबसे पहले अनन्या राव, अवनी सुनील सिरसिकर, देन भविता वशिष्ठ, ये 3 बच्चे हैं जो एनएलयू जोधपुर से 2023 में सिलेक्ट हुए थे। ओके, आपका जो बैच आएगा दैट विल बी 2024। ओके, सो इसके लिए जरूर अप्लाई करना, और थोड़ी बहुत तो रीडिंग की आदत आपको डली गई है, राइटिंग की भी आदत डालना वंस यू क्लियर योर क्लैट, एंड अच्छे से अच्छा ऐसे लिखना so that you may get selected and your resume gets highlighted a lot. Okay, wherever you go your resume will be selected in one go. Okay बच्चों, now nextly ये जो इंटरव्यूज के बारे में बात थी वो सब चीजें हैं। अब हम आते हैं थर्ड स्कॉलरशिप, एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज नोट, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत कम चांस है, इसलिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को बहुत मेहनत लगती है। तो यू हैव एल्यूमिनाई बेस्ड स्कॉलरशिप एज वेल एज AB स्कॉलरशिप। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर Indian government scholarship program, which was provided by Indian government, and the official website of this is scholarship.gov.in. Okay students, now nextly what you have to see when you click on scholarship.gov.in, national scholarship portal will open. अब ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, आप यहाँ पे देखोगे सेंट्रल स्कीम्स, UGC AICTE स्कीम्स एंड स्टेट स्कीम। ओके बच्चों, अब जब सेंट्रल स्कीम है उसमें पहली जो स्कीम आप देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये PWD कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, नाउ इसमें आपको सिलेक्ट करना है बच्चों पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ओपनिंग सून, ओपन टिल 31 दिसंबर।
तो जब आप अप्लाई करोगे, जब आपके एडमिशन्स होंगे, तब यहाँ पे आपको ओपनिंग सून दिखाई देगा। और यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिनसे आप पूछ सकते हो। अब बच्चों, जब आप इसकी गाइडलाइंस और एफएक्यूज पढ़ोगे, तब आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। मैंने गाइडलाइंस का जो पहला पेज है पीडीएफ का, वो आपको समझाती हूँ, बाकी आप खुद ही पढ़ लेना। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, जो गाइडलाइंस का हमारा पहला पेज है, उसमें लिखा है कि ये स्कॉलरशिप कौन सा डिपार्टमेंट देता है। सो डिपार्टमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिपार्टमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्री मैट्रिक, जो आपके लिए नहीं है, फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू एनएलयू। देन कम्स पोस्ट मैट्रिक, ये आपके लिए है। एंड देन कम्स टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर देयर एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ये भी आपके लिए नहीं है। सो मेजरली आपके लिए कौन सी है? पोस्ट मैट्रिक, मैंने आपको सिलेक्ट करके दे दी है। फिर उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं। आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स में पढ़ना चाहते हो, जो क्लास 11th के बाद आप पढ़ रहे हो, तो आप इस स्कीम में एलिजिबल हो। यस, यू कैन परस्यू एलएलबी। ओके, नाउ अब यहाँ पे बच्चों, स्कॉलरशिप के लिए आपकी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इफ यू वांट टू अवेल दिस स्कॉलरशिप, द पेरेंटल और गार्जियन इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड ₹2.50 लाख पर एनम। ओके बच्चों, सो ये बहुत डिफिकल्ट है टू कवर, एंड इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, सो यू कैन नॉट लाई हियर। ओके, नाउ नेक्स्टली आई हैव टेकन दिस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट, द एफएक्यूज वन, ताकि आपको ये पता चले कि एफएक्यूज पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो एफएक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है वो है, व्हाट आर द जनरल कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। सबसे पहला तो जो कैंडिडेट है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर not less than 40% disability and having a disability certificate issued by competent medical authority of India. Okay, not more than 2 disabled children of the same parents will be entitled to receive the benefits under this scheme. So इस तरह से FAQs हैं which you need to study under each and every scholarship provided by government. Okay बच्चों, next let us see the next scholarship. नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे, ये वाले एरिया पे। अब यहाँ पे अगेन आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एफएक्यूज पढ़ने हैं और आप एलिजिबल हो या नहीं, डेट्स देखनी है और अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आप क्लिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उसके पहले मैंने इसका भी एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है माइनॉरिटी अफेयर्स का, कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों, माइनॉरिटी अफेयर्स में बेसिकली जो एलिजिबिलिटी आती है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलीजन ऑफ द कैंडिडेट। ओके, नाउ हु ऑल आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग? फर्स्टली, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 6 notified minority communities with Muslim candidates, Christian candidates, Sikh candidates, Buddhist, Jain and Parsi, Zoroastrians studying in India and fulfilling the scheme guidelines are eligible to apply. ठीक है, तो आप अगर इन कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो, देन यू कैन अप्लाई अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे भी स्कॉलरशिप गाइडलाइंस मेंशन्ड है। वेबसाइट का नाम है www.minorityAffairs.gov.in। इसके अलावा जो हमारा scholarship.gov.in का पोर्टल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट comes Ministry of Social Justice and Empowerment. अब ये किसके लिए है? Let's see. सबसे पहली इसमें है टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इधर के एफएक्यूज आपको पढ़ने हैं, गाइडलाइंस पढ़नी है, फिर अप्लाई करना है। आपको डेट्स तब ओपन दिखेंगी व्हेन यू विल गेट द एडमिशन। ओके, उसके बाद है पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स। सो दिस इज फॉर स्कूल्स, नो। In college, this one is for you. In college for OBC, EBC and DNT students. So अभी available नहीं है, but when you will take admission, it will show in the portal itself. Okay. Now next come Ministry of Labor and Employment. तो यहाँ पे अगर आप फॉल करते हो, दो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बच्चों के लिए है ये। Okay. Now nextly it is this one was important, WARB Ministry of Home Affairs.
तो ये बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस और जो मार्टियर्ड सोल्जर्स हैं उनके बच्चों के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट फॉर हायर एजुकेशन, सो ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सो जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। फिर उसके बाद है रेलवेज के लिए, यहाँ पे रेलवेज के कैंडिडेट्स हैं। फिर उसके बाद है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो बच्चे वहाँ पे बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए है। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ, और जो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, उस हिसाब से आप अपनी स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हो। मान लो आपको समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करूँ, ट्रस्ट मी, आई कॉल ऑन दिस नंबर डेली। वेयर इज द नंबर? 012066195540। सो इस नंबर पे मैं कॉल करके स्टूडेंट बन के बार बार पूछती हूँ, हेलो, आई एम एस सी कैंडिडेट, can I apply for this scholarship? So they give me another number, and then they tell me about the state scholarships also, and they are very nice people, they help a lot. So a lot of information I have gained by calling them only. So yes, this is true, you can gain scholarships from the government also. So whenever you face any kind of difficulty after admission कि मैम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कैसे लें हम, तो ये नंबर है और ऊपर से इनकी हेल्प डेस्क है, और आप यहाँ पे scholarship.gov.in पे जाके उनके फॉर्म्स वगैरह, उनकी सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडेड एट एनएलयू जोधपुर। बच्चों, आई नो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, बट एल्यूमिनाइज तो दे रहे हैं ना, फंड रेजिंग तो हो रही है ना, और उसके साथ साथ आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है, उसके साथ साथ अपने पास ये गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं। सो व्हाई आर यू वरिंग? You just have to do one thing, study and target your dream NLU. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम बिना कोलेट्रल वाला लोन लेंगे, पर हमारा ड्रीम NLU जरूर टारगेट करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन एपिसोड नंबर 5 NLIU भोपाल स्कॉलरशिप गाइडलाइंस। बाय बाय।